Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Aanchal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, in our previous session, we have started with the new unit, that is unit number 9 from your GK syllabus, okay? And in today's session again, I am with you all to start with the same unit but with a different topic, okay? So in the previous session we have done the quiz yourself 1 from your GK book, and in today's session I am going to start with the quiz yourself 2 given in your GK book, okay? That is also given in the unit number 9 from your GK book. So all of you kindly open your books at page number 52, that is quiz yourself 2. Okay, so I'm just writing the topic on the board, that is quiz yourself 2. This is the topic that we are going to start today, and that is given at page number 52, and this is given at page number 52. So the topic is quiz yourself 2. Okay, so as you can, I have told you in the earlier session as well, so in quiz yourself you will get all the questions that are related to the different topic. Okay, तो quiz में क्या होता है कि हर question दूसरे question से अलग होता है, they all are different from each other. Okay, so the first question that we are going to start from this quiz yourself 2 is, which city hosted the 2014 Asian Games? तो 2014 में जो एशियन गेम्स हुई थी वो कौन सी सिटी ने होस्ट की थी? सो द 2014 एशियन गेम्स वर होस्टेड बाय इंचियोन. सो दिस इज द नेम ऑफ अ सिटी दैट इज इन साउथ कोरिया. ओके, देखिए एक साउथ कोरिया है, एक नॉर्थ कोरिया है. सो नॉर्थ कोरिया किम जॉन जो है, जहाँ की जो डिक्टेटर हैं, डिक्टेटरशिप है वहाँ पे उनकी. Okay, so here I am talking about the South Korea, that is another city, so that is another country. Okay, so which city hosted the 2014 Asian Games? So the 2014 Asian Games were hosted by Incheon, and it is of South Korea. So South Korea के जो इंचियोन सिटी में 2014 की जो एशियन गेम्स हैं वो हुई थी. So the 2014 Asian Games were held in Incheon, that is in South Korea. INCHEON, Incheon, that is in South Korea. KOREE. Incheon is the name of a city that is in South Korea. चलिए, next is, which of these diseases is not caused by an insect bite? ओके, इसमें से कौन सा जो डिजीज़ है? सो द नेम ऑफ 3 डिजीजेज आर गिवन हियर एंड यू हैव टू टेल इनमें से कौन सा जो डिजीज़ है वो किसी भी इंसेक्ट मतलब कोई भी कीड़ा, चाहे वो एक मच्छर हो, कोई मधुमक्खी हो, कुछ भी हो, एनी काइंड ऑफ इंसेक्ट कैन इट बी. ओके, सो इनमें से कौन सी तीनों में से कौन सा ऐसा डिजीज़ है जो कि मच्छर के काटने से या किसी भी इंसेक्ट के काटने से नहीं होता? सो द फर्स्ट इज़ येलो फीवर, ठीक है, जिसको हम पीला बुखार बोलते हैं. Second is dengue. Okay, the third is the goiter. Okay, so these are the name of 3 diseases. The first is yellow fever, second is dengue fever, and the third is the goiter. तो इन तीनों में से कौन सा ऐसा डिजीज़ है जो कि इंसेक्ट के, किसी भी कीड़े के काटने से नहीं होता? दैट इज goiter. Goiter occurs because of the लैक ऑफ सोडियम. जब आपके शरीर में नमक की कमी हो जाती है तो जो goiter है, दैट दिस डिजीज अकर. एंड goiter जो होता है, ये क्या होता है, इसमें जो गला है वो काफ़ी सूज जाता है, उनकी वो एकदम स्वेलिंग हो जाती है गले में, दैट इज goiter. ओके, सो द goiter अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ सोडियम और लैक ऑफ सॉल्ट इन योर बॉडी. ओके, सो दैट डजंट अकर्स. जो goiter की बीमारी है वो कभी भी किसी इंसेक्ट के काटने से नहीं होती. सो द क्वेश्चन वॉज, विच ऑफ दिस डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय एन इंसेक्ट बाइट? इसमें से कौन सा डिजीज तो किसी भी कीड़े के काटने से नहीं होता? द फर्स्ट इज येलो फीवर, सेकेंड इज डेंगू फीवर, द थर्ड इज goiter. सो द आंसर इज goiter, that is option number C in your book. So C
Goiter. G-O-I-T-R-E. Goiter. Okay. Moving to the third one. Okay, so the third one is, who was Sania Mirza's partner in their winning match for the 2016 Australian Open title in the women's double category. Okay, so 2016 में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन चैम्पियनशिप हुई थी, that was who was the partner of Sania Mirza. That first of all, that who is Sania Mirza? Sania Mirza is one of the lawn tennis player of our country. Okay, she is associated with lawn tennis. You must be aware of it. Okay, so जो सानिया मिर्ज़ा है वो हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं लॉन टेनिस में और द इंटरनेशनल लेवल. ओके, सो 2016 में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन टाइटल हुआ था, सो हु वाज द पार्टनर ऑफ सानिया मिर्ज़ा इन दैट मैच. ओके, इन द वुमेन डबल्स कैटेगरी. तो जो वुमेन डबल्स हुआ था उसमें सानिया मिर्ज़ा की पार्टनर कौन थी? ओके, इन द 2016 ऑस्ट्रेलिया ओपन. ओके, सो इन द 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो सानिया मिर्ज़ा की पार्टनर थी, शी वॉज मार्टिना हिंगिस. सो मार्टिना हिंगिस वॉज द पार्टनर ऑफ सानिया मिर्ज़ा इन द 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन इन द वुमेंस डबल्स कैटेगरी, जिसमें कि देखिए दोनों टाइप पे 2-2 जो वुमेन्स होती हैं. देखिए वुमेन्स डबल्स कैटेगरी मीन्स सो एट बोथ द साइड्स ऑफ द नेट देयर विल बी 2 प्लेयर्स. ओके, एंड द वुमेन्स था तो दैट मीन्स दोनों साइड, इस साइड 2 जो वुमेन्स प्लेयर्स होंगे और उस साइड भी 2 वुमेन्स प्लेयर होंगे. ओके, तो कौन थी? दैट इज मार्टिना हिंगिस. सो मार्टिना हिंगिस was the partner of Sania Mirza in the 2016 Australian Open in the women's doubles category. So the answer is Martina Hingis. So the answer of the third one is Martina, M-A-R-T-I-N-A. That is Martina Hingis. H-I-N-G-I-S. Martina Hingis. Okay. Next is the fourth one. What is the capital of Japan? तो जापान या जापान जिसको आप बोलते हो, what is the capital of Japan? तो the capital of Japan is टोक्यो. ओके, जहाँ इस साल के 2020 के जो ओलंपिक्स होने थे बट वो हुए नहीं. ओके, सो द टोक्यो इज द नेम ऑफ अ सिटी एंड दैट इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ जापान. सो द कैपिटल ऑफ जापान इज टोक्यो. द कैपिटल ऑफ जापान इज टोक्यो. T-O-K-Y-O. So the capital of Japan is Tokyo. Moving to the fifth one. The capital of Japan is Tokyo. Okay. Next is, what is the full form of political party AAP? So जो AAP नाम की एक political party है, उसका what is the full form of that? So AAP, first of all, what is AAP? AAP is a political party. Okay, and it is also the ruling party in Delhi right now. तो दिल्ली में जो अभी कौन सी ruling party है, that is AAP, जिसका full form है that is आम आदमी पार्टी. Okay, and who is the chief minister of Delhi? That is Arvind Kejriwal. So Arvind Kejriwal is the chief minister of of Delhi, and he is also the, you can say, the leader of आम आदमी पार्टी. वो जो आम आदमी पार्टी के जो हेड हैं, so the head of आम आदमी पार्टी is also Arvind Kejriwal, and he is also the chief minister of the capital of our country, that is Delhi. Okay, so फिलहाल दिल्ली में कौन सी रूलिंग पार्टी है? दैट इज आप, जिसका फुल फॉर्म है आम आदमी पार्टी. क्लियर? ओके, सो द क्वेश्चन वाज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आप? AAPO, आप. So the full form of AAP, AAP is क्या है? That is आम आदमी पार्टी. This is the full form of AAP. The full form of AAP is आम आदमी पार्टी. Clear? So this is the answers from first 5. The first is Incheon, South Korea, where the 2014 Asian Games were held. Second is Goiter,
So this disease doesn't occurs due to the insect bite. It occurs due to the lack of sodium or salt in the human body, in which जो हमारा neck है वो swelling हो जाती है. Third is Martina Hingis. She was the partner of Sania Mirza in the 2016 Australian Open, okay, in the women's doubles category. Third is Tokyo. So Tokyo is the capital of Japan, जहाँ पे 2020 के जो ओलंपिक गेम्स है जो होनी थी. नाउ फिफ्थ इज आप. सो द फुल दिस आप इज अ पॉलिटिकल पार्टी दैट इज ऑल्सो अ रूलिंग पार्टी इन दिल्ली. तो ये दिल्ली में एक रूलिंग पार्टी भी है. ओके, सो आप की फुल फॉर्म क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ आप इज आम आदमी पार्टी. यू कैन जस्ट पॉज योर वीडियोज हियर एंड नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स, इन योर बुक्स. क्लियर? चलिए, मूविंग नेक्स्ट टू द सिक्स्थ वन. So I'm moving to the sixth question from the quiz yourself 2. So question number 6 is, in November 2015, who became the fastest ever cricketer to take 150 test wickets? Okay. Okay, so 2015 November में सबसे he who became the fastest ever Indian cricketer to take 150 test wickets. ओके, तो नवंबर 2015 में सबसे जल्दी, फास्टेस्ट मीन्स सबसे जल्दी 150 विकेट्स लेने वाले, टेस्ट क्रिकेट में 150 विकेट्स लेने वाले इंडियन क्रिकेटर का नाम क्या है? दैट इज आर अश्विन, जिनको हम आर अश्विन कहते हैं, जिनका पूरा नाम है रविचंद्रन अश्विन. ओके, सो रविचंद्रन अश्विन जिनको हम बोलते हैं. सो रविचंद्रन अश्विन was the first Indian cricketer who has taken the fastest 150 wickets in a test in test series. Not in a, मतलब in test wickets में. तो मतलब देखिए 3 तरह के मैचेस होते हैं. द फर्स्ट इज 2020 जो होता है, जिसमें 2020 ओवर्स का मैच होता है. यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ इट. सो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी लविंग इट एज वेल. सेकेंड इज ODIs, जिसको वनडे मैचेस बोला जाता है, जिसमें कि 50 ओवर्स का मैच होता है. थर्ड इज द टेस्ट मैच, जिसमें कि एक ही मैच जो है 5 दिन के चलता है, जिसमें हर टीम 2 इनिंग्स खेलती है, डिपेंड्स अपॉन. ओके, एंड उसमें जो एक ही मैच होता है जो 5 दिन तक चलता है, एंड द टाइम ड्यूरेशन इज लिमिटेड. पर बाकी जो मैचेस उसमें टाइम ड्यूरेशन लिमिटेड नहीं होती, बट इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो लिमिटेड होती है कि दैट स्टार्ट्स इन द 9 in the morning और 10 in the morning एंड एंड्स एट 5. ओके, सो चाहे वो किसी भी प्लेग्राउंड में हो, चाहे वो इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, या कहीं पे भी हो. ओके, सो 2015 नवंबर में सबसे जल्दी टेस्ट विकेट्स 150 टेस्ट 150 टेस्ट विकेट्स लेने वाले जो इंडियन क्रिकेटर हैं वो कौन है? सो इट इज आर अश्विन, जिसको हम बोलेंगे रविचरण अश्विन. सो रविचरण अश्विन वॉज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर हु हैज़ टेकन द फास्टेस्ट 150 टेस्ट विकेट्स. ओके, सो टेस्ट मैच में सबसे जल्दी 150 विकेट्स लेने वाले सबसे पहले इंडियन क्रिकेटर हैं, दैट इज रविचरण अश्विन. सो द आंसर ऑफ द सिक्स्थ वन इज रविचरण अश्विन, जिसका रवि चरण अश्विन, ASHWIN. So Ravicharan Ashwin is the fastest cricketer who has taken is the Indian cricketer who has the taken 150 fastest wickets in test wickets. Okay, next one. Which of the letters give below fill in the blanks in the series? Okay, which of the letters given below fill in the blanks in the series? ओके, सो देखिए आपको बताना है इसमें से कौन सा लेटर्स है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन द D, देन इट्स ब्लैंक, देन L, P, देन T, X. So these are the some letters that are given and some options are also given. Option A is E, option B is K, option C is G, and option D is H.
तो देखिए हमारे पास एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है एंड वाइल ऑब्जर्विंग द पैटर्न यू हैव टू फिल दिस वन। आपको ये पैटर्न ऑब्जर्व करते हुए आपको ये फिल करना है। ओके तो देखिए अब इसको हम ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सा जो लेटर्स हैं वो लिए गए हैं। ओके सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दिस। सबसे पहले है जो हमें ऊपर वाले जो दिया है इसको देखेंगे। सो हियर इट इज डी, देन इट्स ब्लैंक, देन एल, देन पी, देन डी, देन एक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, तो जो डी लेटर है हमारे जो अल्फ़ाबेट्स का हम लिखते हैं, जो उसमें जो डी लेटर है वो कौन से नंबर पे आता है। देखिए तो फर्स्ट इज ए, देन बी, देन सी, देन डी। सो दैट मीन्स जो डी कौन से नंबर पे आता है, 4। ए बी सी डी, तो डी कम्स एट 4th प्लेस। डी कम्स एट 4th प्लेस। अब ये हमारे लिए मिसिंग है। ओके सो नेक्स्ट इज एल। ठीक है एल। देखिए अब देखिए बच्चा एक चीज़ देखिए, अच्छा एल और पी के बीच में देखिए, एल और पी के बीच में देखिए कितना डिफरेंस है। एल के बाद एल के बाद एल के बाद एल, एम, एन, ओ, पी। एल और पी के बीच में कितने लेटर्स का डिफरेंस है, 4। पी से टी के बीच में देखिए कितने लेटर्स का डिफरेंस है, पी क्यू आर एस टी। So the difference between P and T is also 4. So P और T के बीच में कितने letters का difference है, 4 once again. So what is the difference between the letters between T and X? T और X के बीच में कितने letters का difference है, S T U V W X. Again 4. So that means इन सब में अगर हम इन तीनों की बात करें, सो इन तीनों में कितने लेटर्स का डिफरेंस है, 4 4। सो दैट मीन्स 4 लेटर्स के बाद एल के बाद 4 लेटर्स, 4th लेटर कौन सा है, दैट इज पी। पी के बाद 4th लेटर कौन सा है, दैट इज टी। टी के बाद 4th लेटर इज एक्स। सो दैट मीन्स हियर वी हैव टेकन द डिफरेंस ऑफ 4 लेटर्स। सो दैट मीन्स एंड डी इज ऑल्सो द 4th लेटर अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज। अगर हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की बात करें, सो इन दैट ऑल्सो डी इज एट द 4th प्लेस। सो दैट मीन्स डी के बाद जो 4th प्लेस पे जो इनमें से कौन सा जो अल्फ़ाबेट है दैट इज एट 4th प्लेस आफ्टर डी। तो डी के बाद 4th प्लेस पे कौन सा डिजिट है इनमें से, सो डी के बाद डी, ई, एफ, जी, एच। सो एच इज द 4th डिजिट आफ्टर डी। ओके सो डी के बाद 4th नॉट डिजिट, डी के बाद 4th अल्फ़ाबेट कौन सा है, डी, ई, एफ, जी, एच। सो दैट इज एच। ओके सो एच इज द 4th अल्फ़ाबेट आफ्टर डी। क्लियर? चलिए सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट अगेन वन मोर टाइम इन द क्लियर हैंड राइटिंग। सो एज वी हैव ऑब्जर्व द पैटर्न, so the pattern was given by the difference of 4 letters, D dash, then L, then P dash, then T, then X. So देखिए इन सब में 4 letters का difference है. So that means after D what is the 4th letter, that is H. So the answer is H. So after D the 4th letter is H. So you will write H. That is option number D. Clear? चलिए मूविंग नेक्स्ट टू द 8th वन. विच स्टेट वॉज द झारखंड फॉर्मली अ पार्ट ऑफ, फॉर्मली अ पार्ट ऑफ, कौन सी स्टेट का जो झारखंड है वो कौन सी स्टेट का पार्ट है. सो देखिए एज यू नो इन द ईयर 2000 जो हमारी 3 न्यू स्टेट्स फॉर्म हुई थी. ओके द फर्स्ट इज द उत्तराखंड, सेकेंड इज द छत्तीसगढ़ एंड द थर्ड वन इज द झारखंड. ओके तो ये तीनों स्टेट्स हैं अलग अलग, जैसे जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से निकली थी, ओके झारखंड बिहार से एंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा से निकल के बनी थी. ये 3 स्टेट्स है, न्यूली फॉर्म स्टेट्स है. नाउ इट इज़ नॉट अ न्यू, अब तो इनको बने हुए 20 साल हो गए हैं. ओके सो जो झारखंड जो स्टेट थी वो कौन सी स्टेट से निकल के बनी थी. ओके सो दैट द झारखंड, अर्लियर द झारखंड वॉज द पार्ट ऑफ बिहार. नाउ इट हैज़ बिकम अ न्यू स्टेट इन इटसेल्फ. So which state was Jharkhand formerly a part of? So Jharkhand was formerly was the part of Bihar. तो झारखंड पहले कौन सी स्टेट का पार्ट थी, that is of Bihar.
आंसर ऑफ 8th इज बिहार। तो पहले झारखंड कौन सी स्टेट का पार्ट थी? दैट इज ऑफ बिहार। झारखंड वॉज फॉर्मरली द पार्ट ऑफ बिहार। मूविंग टू द 9th one. Which of the name of the highest dam in India? What is the name of the highest dam in India with a height of 260 meter? Okay. जो इंडिया में सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा डैम है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डैम, जिसकी ऊंचाई है देयर अबाउट 260 मीटर। तो जो इंडिया में सबसे ऊंचा डैम है, द हाइट ऑफ दैट डैम इज 260 मीटर। सो द हाइट ऑफ द डैम इज गिवन, दैट इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया which is 260 meter. Now you have to mention the name of the dam. Okay, so the highest dam in India is Tehri Dam. Okay, so the highest dam in India is Tehri Dam. That is up to 200. The highest of this Tehri Dam is 260 meter. So the height of this Tehri Dam is 260 meter and it is the highest dam. सबसे ऊंचा, लंबाई में सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? दैट इज टेहरी डैम। ओके, सो द आंसर ऑफ द 9th one इज टेहरी डैम। TEHRIE। टेहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। टेहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ द 9th question given in your book, टेहरी डैम। ओके, चलिए नाउ मूविंग नेक्स्ट टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गोवा? सो गोवा इज द, सिक्किम सबसे छोटी स्टेट है, इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन इज सिक्किम। ओके, सो देखिए जो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गोवा, जो गोवा हमारी एक स्टेट है, गोवा इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ अवर कंट्री। So what is the capital of Goa? So the capital of Goa is Panji. Okay. So the capital of Goa is Panji. The spelling of Panji is Panaji. So Panji is the capital of Goa. Panji is the capital of Goa. So the answer of the 10th is Panji. Panaji. So Panji is the capital of Goa. Panji is the capital of Goa. So these are the answers from the question number 6 to 10. The 6th is Ravichandra Ashwin. He is the first Indian cricketer who has taken the fastest 150 test wickets. तो सबसे जल्दी 150 टेस्ट विकेट्स लेने वाले, he is the first Indian cricketer. This was the sum from reasoning question. So we have already done. So in this we have written the letters in the alphabetical letters after the gap of 4 letters. हर 4 letters की gap के बाद हमने यहाँ पे letters जो लिखे। Next is 8th बिहार। बिहार जो झारखंड इज फॉर्म फ्रॉम बिहार। जो झारखंड स्टेट है वो कौन सी स्टेट से निकल के बनी थी? फ्रॉम बिहार। नेक्स्ट इज तहरी डैम। दिस इज द हाईएस्ट डैम इन द India. This is the highest built dam in India, which is with the height of this Tehri dam is 260 meter, which is the highest, which is the height of the highest dam of our country. The next is Panji. Panji is the capital of Goa. Panji is the capital of Goa. चलिए, moving next to the 11th question. The question number 11 that is given here. Which very popular film was about an alien whose full name was Punmiya Kushal? Okay, so that I don't know. ठीक है, so कहते हैं ऐसी कौन सी एक पॉपुलर मूवी थी जिसमें कि एक जो एक्टर थे he had played the role of an alien. So in this the actor had played the role of alien, okay, and he was named as PK. ठीक है, तो देखिए आमिर खान की जो मूवी थी PK, जिसको आपने सुना होगा, ओके, सो PK इज द नेम ऑफ द मूवी एज वेल एज द कैरेक्टर that was being played by Amir Khan in the movie PK as well. So what is the full form of that PK?
जो पीके था उसका फुल फॉर्म क्या था, दैट इज पुनमिया कुशल। तो पीके का फुल फॉर्म था पुनमिया कुशल। सो दिस वाज द फुल फॉर्म ऑफ पीके। इवन आई डोंट नो कि ऐसा कुछ फॉर्म नाम था। ओके, सो आई हैव कम टू नो अबाउट दिस फ्रॉम दिस बुक ओनली। ओके, सो पीके मूवी में जो आमिर खान का पीके नाम था उसका फुल फॉर्म था पुनमिया कुशल। ओके, सो द नेम ऑफ द मूवी इज पीके, P.A. That was the movie. This is one of the popular movie, and it has great box office collection. Next, okay, what is the full form of Wi-Fi? So we all use Wi-Fi. Wi-Fi क्या होता है? So this is an internet connection without any LAN cable. किसी भी लैन केबल के बिना जो हम एक इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, दैट इज़ वाईफाई। तो स्पेशली देखिए हॉटस्पॉट भी हम वाईफाई से चलाते हैं कि आप किसी से हॉटस्पॉट ले रहे हो तो आपको अपना वाईफाई ऑन करना पड़ेगा। और तो मॉडम होता है उसमें आपने देखा कि एक जो सिग्नल के लिए लगा होता है, लंबा सा पीछे आपने डंडी देखी होती है। ओके, दैट स्टिक। ओके, सो जो वाईफाई, ओके, सो वाईफाई क्या होता है, दिस इज़ अ नेट कनेक्शन विदाउट एनी केबल। तो ये तरह से नेट कनेक्शन बिना किसी केबल की हेल्प से, ठीक है। सो इसमें यू हैव टू जस्ट एंटर द पासवर्ड ऑफ द वाईफाई। आपको वाईफाई का पासवर्ड एंटर करना है एंड यू विल कलेक्ट टू द इंटरनेट ऑटोमेटिकली विदाउट एनी लैन केबल। सो हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? जो वाईफाई हम यूज़ करते हैं उसकी फुल फॉर्म क्या है? ओके, सो द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई इज वायरलेस फिडिलिटी। सो द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई इज वायरलेस फिडिलिटी। That is WIRE, wireless fidelity, FIDELITY. So this is the full form of Wi-Fi. Wi-Fi की full form क्या है? Wireless fidelity. The full form of Wi-Fi is wireless fidelity, FIDELITY. So the full form of Wi-Fi is wireless fidelity. Next, question number 13. Which of these substances is a constituent of water? ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन। इन तीनों में से कौन सा जो है वाटर का कॉन्स्टिट्यूट है? दैट इज ऑक्सीजन। ओके, देखिए वाटर को आपने अगर सुना हो, वाटर इज ऑल्सो नोन एज H2O। H2O is the name of ये जो एक केमिकल नेम आपके लिए, केमिकल फॉर्मूला फॉर द वाटर, ये केमिकल फॉर्मूला है वाटर का, दैट इज H2O। सो इफ यू विल मिक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन देन यू विल गेट द वाटर। सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। ये पानी का केमिकल फॉर्मूला है। ओके, सो द क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ दीज सब्सटेंसेज इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर? इसमें से कौन सा सब्सटेंस है जो वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट है? ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन। तो देखिए इसमें से कौन सा, दैट इज ऑक्सीजन। H2O मैंने अभी आपको बताया, दैट इज ऑक्सीजन, OXYGEN। सो ऑक्सीजन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर। ऑक्सीजन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर। चलिए, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 14. ओके, व्हाट इज द ऑफिशियल डिस्टेंस ऑफ अ मैराथन रेस इन द ओलंपिक गेम्स? जो मैराथन रेसेस होती हैं ओलंपिक्स गेम में, उसका ऑफिशियली डिस्टेंस कितना होता है? व्हाट इज द ऑफिशियल डिस्टेंस? क्योंकि मैराथन में कितना डिस्टेंस जो होता है, दैट इज 42.195 किलोमीटर। सो दिस इज द ऑफिशियल डिस्टेंस ऑफ मैराथन दैट आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन ओलंपिक इवेंट्स। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो मैराथन में पार्ट लेते हैं। ओके, सो वो भागते हैं होल्डिंग का मशाल। ओके, सो व्हाट इज द ऑफिशियल डिस्टेंस? तो जो मैराथन जो भागते हैं उसका ऑफिशियल डिस्टेंस कितना है? सो द ऑफिशियल डिस्टेंस ऑफ मैराथन इज 42.195 किलोमीटर। दैट इज 42.195 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या? 42.195 मीन्स 42 किलोमीटर एंड 195 मीटर। दिस इज द ऑफिशियल डिस्टेंस ऑफ मैराथन इन ओलंपिक गेम्स। मूविंग टू द लास्ट वन, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द ऑन द अर्थ? धरती के ऊपर सबसे लंबी रिवर कौन सी है? दैट इज नाइल। नाइल रिवर, दैट इज इन इजिप्ट में जो है, दैट इज नाइल। सो द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ इज
Nile River, and this is in Egypt. That is in Egypt. Okay. So these are the answers from 11 to 15. Okay, you can just note it down in your notebook. Okay, in your books. Okay, so with this, I'm just ending the session here only, class. So I'll see you again very soon in our next session. So till then, everybody, have a good day.